Hello students, how are you all? I hope you all are doing fine. आप सब लोग ठीक हैं। तो आज डे 11 है हमारी यूनिट 3 का एल्गा 9 का। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फोनिक्स। फोनिक्स में हमने कल क्या रीड किया था? हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी के बेस पे स्टोरी रीड की थी, जेम एंड गौतम। आज एक बार हम दोबारा से सेम स्टोरी पढ़ेंगे, जेम एंड गौतम। Jem and Gautam are brothers. Jem loves to eat oranges. Gautam loves to eat grapes. Jem and Gautam go to a zoo. There they see a giraffe and a gorilla. The giraffe is tall and the gorilla is huge. Both of them are in cages. They both touch the giraffe and gorilla gently. After that, they wash their hands to avoid catching germs. They take a bridge to go back home. So, all the words, जितने भी वर्ड ग्रीन में हैं, ग्रीन कलर में, वो सॉफ्ट जी हैं। जेम, ऑरेंजेस, जिराफ, ह्यूज, केजेस, जेंटली, जिराफ, जर्म्स, ब्रिज। और जितने भी वर्ड्स रेड में हैं, वो सब हार्ड जी हैं। गौतम, grapes, gorilla, catching, go. So students, now open page number 76 in your worksheet WS 16. आज हम क्या करेंगे? ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, हार्ड जी और सॉफ्ट जी। Fill in the blanks with the correct word from the box. ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं आउट ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स में से चूज करना है कौन सा कहाँ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ डैश ब्रीज वॉज ब्लोइंग इन द पार्क। पार्क में हवा उड़ रही थी। कैसी हवा उड़ रही थी? ब्रिज, जेंटल, ड्रैगन, गुड या एनर्जी। तो ये कौन सी हवा चल रही थी? अ जेंटल। A gentle breeze was blowing in the park. Next, we need to walk on a dash to cross a river. River cross करने के लिए हमें किस पे walk करना पड़ता है? Bridge, gentle, dragon, good या energy। तो हम bridge पे walk करते हैं to cross a river। सब students मेरे साथ साथ अपनी book में पूरा करेंगे। We spend all our dash playing. हम अपनी खेलते हुए पूरी क्या spend कर देते हैं? Energy। We spend all our energy playing. Next, a dash can breathe fire and fly. A dash क्या फायर ब्रीथ करता है और उड़ सकता है? ड्रैगन। A dragon can breathe fire and fly. Rahul and Raj are dash friends. Rahul and Raj are good friends. So, सब लोग दोबारा से रिपीट करेंगे। A gentle breeze was blowing in a park. We need to walk on a bridge to cross a river. We spend all our energy playing. A dragon can breathe fire and fly. Rahul and Raj are good friends. सब लोग अपनी नोटबुक्स में, अपनी वर्कशीट्स में कंप्लीट करेंगे। अब सब लोग अपनी SR में 71 पेज नंबर SR 22 ओपन करेंगे। हम फिर से आज होल वर्ड्स रिपीट करेंगे। दो, THOUGH, though. Always, ALWAYS, always. Early, EARLY, early. Color, COLOUR, color. Became, BECAME, became. Sometimes, SOMETIMES, sometimes. During, DURING, during. However, HOWEVER, however. Spread, SPREAD, spread. Around, AROUND, around. Those, THOSE, those. Earth, EARTH, earth. Moon, MOON, moon. लाइट, LIGHT, लाइट। सब अच्छे सारे होल वर्ड्स दोबारा से विद स्पेलिंग्स रीड करेंगे और एक बार अपनी नोटबुक्स में सारे वर्ड्स दोबारा से लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स,
we come on third component, that is reading and listening comprehension. इसमें हम आज स्टोरी पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिनके बर्थडे पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 5th September every year. Okay, so the story starts. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born at Tirutani in Andhra Pradesh, India. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहाँ पे पैदा हुए थे? तिरुतानी, जो आंध्र प्रदेश में है। He was a famous teacher. वो बहुत फेमस टीचर थे। And one of the respected scholars, और बहुत ही respected scholar भी थे। He was born in a poor family. बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। His father worked as a clerk in a government office. उनके फादर एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे, बाबू थे। He wanted Dr. Radhakrishnan to become a priest and not pursue higher studies. उनके फादर चाहते थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक पंडित बन जाएं और हायर स्टडीज ना करें। But Dr. Radhakrishnan was a brilliant student and received many scholarships. लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत ही होशियार बच्चे थे, पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे और बहुत स्कॉलरशिप्स, वजीफे भी मिले थे उनको। His father couldn't stop him from pursuing higher studies. इसलिए उनके फादर उन्हें हायर स्टडीज लेने से रोक नहीं पाए। After his studies, Dr. Radhakrishnan taught philosophy in the universities of Mysore and Kolkata. पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड कोलकाता में फिलॉसफी पढ़ाना शुरू कर दिया। He was also invited to teach at Oxford, a prestigious university in England. उनको इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी बुलाया गया पढ़ाने के लिए। After holding numerous prestigious positions, he joined politics in 1946. ऐसी बहुत सारी प्रेस्टिजियस पोजीशंस होल्ड करने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स, राजनीति ज्वाइन कर ली 1946 में। After 7 years of his political career, he became the first vice president of India in 1952. 7 साल के बाद वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए 52. He served as the vice president of India for 10 years. 10 साल तक उन्होंने वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। In 1962 he became the president of India. 10 साल के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए। Every year on 5th September, Teachers Day is celebrated to pay him tribute. हर 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ऑन दिस डे टीचर्स अक्रॉस द कंट्री आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। इस दिन हम सारे टीचर्स को के कंट्रीब्यूशन को जो वो हमारे लिए करते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे कंट्री में। अब सारे बच्चे क्या करेंगे, ये दोबारा से रीड करेंगे पूरी स्टोरी, और जो वर्ड उन्हें समझ में नहीं आएगा उसको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे और डिक्शनरी से उसका मीनिंग लिखेंगे, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जैसे फेमस का मीनिंग है नोन बाय मेनी पीपल, तो डिक्शनरी में बच्चे फेमस देखेंगे और सामने हिंदी में उसका मीनिंग लिखेंगे। अपनी नोटबुक में आज सारे बच्चे वर्ड मीनिंग लिखेंगे, जो भी वर्ड आपको पूरे स्टोरी में समझ नहीं आएगा, और उन वर्ड मीनिंग की फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे ग्रुप पे भेजोगे। तो हम थोड़े वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। फेमस मीनिंग नोन बाय मेनी पीपल, बहुत लोगों द्वारा जाने पहचाने लोगों को फेमस बोलते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज वेरी फेमस। परसू, फॉलो और चेज, किसी चीज़ को फॉलो करना, परस्यू। स्टूडेंट्स परस्यू हायर स्टडीज आफ्टर स्कूल। प्रेस्टिजियस, हाईली रिस्पेक्टेड, जिनकी बहुत इज्जत होती है। IITs and IIMs are prestigious colleges in India. Tribute, a show of thanks and respect. We celebrate Children's Day on November 14 as a tribute to Jawaharlal Nehru. जैसे ये वर्ड मीनिंग लिखे हैं, आप इसमें से और वर्ड ढूंढ के जिसका भी आपको रीड करते वक्त मीनिंग नहीं आएगा, डिक्शनरी में से देखकर सब बच्चे मीनिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में। अब आते हैं हम ग्रामर सेक्शन में। हमने उस दिन पढ़ा था जेंडर नाउन्स। जेंडर नाउन्स पे अब हम वर्कशीट 18 कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 78। तो फिर जेंडर नाउन क्या होते हैं? जेंडर नाउन होते हैं जिस नाउन से हमें पता लग जाए कि जेंडर क्या है उसका। अंकल से पता लगता है कि मेल जेंडर है। आंटी से क्या पता लगता है कि फीमेल है। अब हम जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे फिल करना है।
माई ब्रदर एंड डैश प्ले विद मी, मेरा भाई और डैश मेरे साथ खेलते हैं। तो दो ऑप्शन दिए हैं, सिस्टर एंड डॉटर। तो सिस्टर एंड डॉटर में से क्या आएगा यहाँ पे? इसको फिल करने के लिए हम ब्रदर का ऑपोजिट जेंडर नाउन देखेंगे। ब्रदर का ऑपोजिट जेंडर नाउन सिस्टर होगा कि डॉटर होगा? सिस्टर होगा। तो यहाँ क्या आएगा? सिस्टर। ब्रदर का ऑपोजिट जेंडर नाउन होता है सिस्टर। डॉटर किसका होता है? सन का। अगर यहाँ होता सन तो यहाँ आता डॉटर, माई सन एंड डॉटर। लेकिन ब्रदर है तो सिस्टर आएगा। अ लायन एंड डैश वो वॉन्डरिंग इन द जंगल। तो लायन के ऑपोजिट जेंडर नाउन क्या है? टाइग्रेस की लायनेस? लायनेस। वी वर बीइंग सर्व्ड बाय अ डैश एंड अ वेट्रेस। वेट्रेस और वेट्रेस एक फीमेल जेंडर नाउन है। इसका ऑपोजिट जेंडर नाउन क्या होगा? वेटर। कोई भी ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा तो जो भी लिखा होगा उसका ऑपोजिट जेंडर नाउन देखोगे। ऑपोजिट मतलब अगर फीमेल का दिया है तो आप उसका मेल वर्जन देखोगे, मेल दिया है तो फीमेल देखोगे। ब्रदर का सिस्टर, लायन का लायनेस, वेट्रेस का वेटर। अ डैश एंड अ डक वर स्विमिंग इन द लेक। डक एक फीमेल जेंडर नाउन है, इसका मेल जेंडर नाउन होता है ड्रेक। अ ड्रेक एंड अ डक वर स्विमिंग इन द लेक। सब बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे दोबारा से। कल मैंने आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था जिसका टॉपिक था द लोकल मार्केट। तो अब हम आज उसको क्या करेंगे? एनहांस करेंगे। एनहांसिंग अ पैराग्राफ और एडिट करेंगे। एनहांस और एडिट करेंगे। तो हम किसी भी पैराग्राफ को एनहांस कैसे करते हैं? आर्म्स रूल से। आर्म्स, ARMS। आर्म्स में ए क्या बोलता है? ऐड डिटेल्स एंड वर्ड्स। मतलब जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें डिटेल्स ऐड कीजिए और कुछ वर्ड्स ऐड कीजिए। रिमूव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट डू नॉट फिट। जो आपको लगता है कि ये वर्ड और सेंटेंस की यहाँ जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर दीजिए। मूव वर्ड्स और सेंटेंसेस वेयर दे फिट बेटर। तो कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस इधर उधर करने होंगे, वो आप इधर उधर करके उनको प्रॉपर एनहांस कीजिए पैराग्राफ। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स विद नाइसर वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके नाइसर वर्ड्स भी अवेलेबल होंगे तो उनकी जगह आप वो लिखें। एग्जाम्पल, सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है। माई फेवरेट टीचर वॉज मिस मालती। आई लाइक्ड हर वेरी मच। शी वॉज अ नाइस टीचर। शी टॉट अस मैथ एंड इट वॉज इजी टू लर्न। शी वॉज अ नाइस टीचर। अब हमने पैराग्राफ एनहांस करा है। माई फेवरेट टीचर वॉज मिस मालती। शी वॉज अ वेरी नाइस टीचर। तो हमने लाइक्ड हर वेरी मच की जगह वेरी नाइस टीचर कर दिया। शी टॉट अस मैथ्स एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। ईजी टू लर्न की जगह लर्न की जगह हमने अंडरस्टैंड रख दिया। शी वॉज अ नाइस टीचर। शी वॉज अ नाइस टीचर की जगह आई लाइक्ड हर वेरी मच, क्योंकि नाइस टीचर पहले भी आ गया वेरी नाइस टीचर, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे दूसरी लाइन डाल दी, आई लाइक्ड हर वेरी मच। तो ऐसे ही जो आपने कल लोकल मार्केट के ऊपर पैराग्राफ लिखा है उसको आप एनहांस करोगे। फिर आप कप्स मेथड यूज करके पैराग्राफ एडिट करोगे। कप्स में क्या होता है? कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ। जहाँ भी आप कोई नया सेंटेंस शुरू करते हो हर फुल स्टॉप के बाद, जैसे शी, आई, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद नई लाइन शुरू हो रही है तो हर एक के आगे कैपिटल लेटर आएगा। हर प्रॉपर नाउन, जो भी प्रॉपर नाउन है जैसे मालती, आई, तो इन सबके फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होंगे। और फॉर द लेटर आई भी हमेशा कैपिटल होता है। फिर आता है यू। यूज नाउन फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस टू एनहांस द पैराग्राफ। नाउन फ्रेजेस जो हमने पढ़े हैं वो आप यूज कर सकते हो। शिवम वॉज अ टॉल एंड हैप्पी बॉय। टॉल एंड हैप्पी बॉय क्या है? नाउन फ्रेज। वी वेंट टू द सेम स्कूल। पुट वन फिंगर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। हर एक वर्ड के बीच में एक उंगली का स्पेस रखोगे। जब आप दो वर्ड लिखेंगे कॉपी में तो हर एक के बीच में एक एक उंगली का स्पेस होना चाहिए। स्पेलिंग्स आर ऑल करेक्ट। सारी स्पेलिंग्स आप करेक्ट करोगे। फेवरेट, अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है तो उसको करेक्ट करोगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि जो पैराग्राफ आपने कल लिखा था उसको आप एडिट और एनहांस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पांचों कॉन्सेप्ट जो कवर किए हैं उसमें आपको जो जो मैम ने बताया है वो सब आप अपनी वर्कशीट्स में कंप्लीट करेंगे और होमवर्क ग्रुप पे भेजेंगे। थैंक यू।